chain of matrix multiplication, like if there is a matrices, here ai plus 1 up to j is multiplied, these chain of matrices are multiplied together, so this is equal to a of suppose this b parenthesize the matrices into two parts, and then recursively solve, obtain the solution of each part. And here suppose b partition the matrices, b parenthesize this matrices like it ai plus 1 up to ak, and ak plus 1 to aj. So this is, we parenthesize this, so this is the multiplication of this plus multiplication of means ak plus 1 to aj plus cost of obtaining, a cost of merging, cost of obtaining result matrix. Result matrix means cost of multiplying this plus this. Suppose here we multiply first this means, then we solve recursively this, we solve recursively this means we obtain, we solve this means we again parenthesize the same matrix that have a minimum number of computations required. We again solve this as a sub problem which requires minimum number of computation, and this is the cost of obtaining result matrix. This cost of obtaining means cost of multiplying this resultant plus this resultant. Suppose here, let us take example to this is what, suppose mij matrix, so this is equal to I is equal to j, and this is equal to mean of mik. Here this is mik, mean of mi comma k plus m k plus 1 to j, k plus 1 comma j, plus what is the cost of multiplying these two resultant, this is ik, this is ik, so this means this is what, this is pi minus 1 multiplied by pk multiplied by pj. For if I is less than j, and for each k which is I is less or equal to k is less or equal to less than j. So this is the cost of mij is equal to 0 when I is equal to j, and if I is less than j, then what is the cost? This is the mean of mik plus mk plus 1j, means mean of this plus this, and plus cost of obtaining the resultant matrix. Cost of obtaining result matrix क्या होगा, देखिए इसका जो डायमेंशन होगा, here the size of each matrix क्या है, dimension of each matrix ai, here dimension of matrix ai is of size pi minus 1 cross pi. So what is the dimension of means this matrix ai to ak to resultant matrix mik, तो this means this is pi minus 1, और इसका क्या होगा लास्ट जो के, तो here when we consider तो ai का जो dimension है that is of pi minus 1 cross pi. Okay, then what is the dimension of this matrix ak? ak का जो dimension होगा that is equal to pk minus 1 cross pk. What is the dimension of matrix ak plus 1j? तो ak plus 1 का क्या होगा, ak plus dimension of ak plus 1 is equal to pk multiplied by pk plus
1, and what will be the dimension of matrix J, AJ? AJ का dimension क्या है? This is AJ PJ minus 1 multiplied by PJ. तो what will be the dimension when we multiply this matrix? तो ये AI to up to AK, तो the resultant matrix consisting the dimension PI minus 1, ये देखिए PI minus 1 डैश मल्टीप्लाई होगा, लास्ट इसका क्या है PK, तो PI minus 1 मल्टीप्लाइड बाई PK, ये इसका डायमेंशन आएगा. व्हाट इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस? तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक्स? दिस इज PK multiplied by PJ. When we multiply these matrices, what will be the dimension of the फाइनल मैट्रिक्स? दैट इज मीन्स तो टोटल नंबर ऑफ जो डायमेंशन होगा वो टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन तो PI माइनस 1 क्रॉस PJ होगा, बट टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे इस केस में? टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस क्या हो जाएंगे? PI माइनस 1 क्रॉस PK क्रॉस PJ. तो डायमेंशन होगा आपको PI माइनस 1 क्रॉस PJ होगा, एंड टोटल number of computations required for obtaining this result means total number of computations required for multiplying this and this, that is equal to PI minus 1 cross PK cross PJ. तो यही यहाँ पे है. This is the cost of multiplying this matrix and this matrix. So here let us take a example, simple example. Suppose A is a matrix that is of size, A1 is a matrix that is of size 10 cross 20. B is A2 is a matrix that is of size 20 cross 30. A3 is a matrix that is of size 30 cross 15. A4 is a matrix that is of size 15 cross 25. So these are suppose 4 matrix. We take a 4 matrix. Then we make a 2 matrices. First is M matrix, which is a cost matrix. That is M of 1 to N. N is the number of matrices, and 1 to N. This is the N cross N matrix. For storing Mij cost, this matrix store cost of Mi comma j. Second matrix S 1 to N minus 1 comma 2 to N. This is a matrix for recording indices K. Yes. Any problem? कोई ज्वाइन होना चाहता है, ज्वाइन कर लीजिए. Okay. तो यस इज अनदर मैट्रिक्स ऑफ साइज n minus 1 क्रॉस n minus 1 साइज का होगा. यस, बट the number of rows starting from 1 to n minus 1 and the number of columns in S starting from 2 to n. So this means this is store indices K. ठीक है, this indices K for optimal cost. सारी indices नहीं स्टोर होगी, for optimal, इसकी कॉस्ट ऑप्टिमल होगी, जिसके लिए Mij की वैल्यू ऑप्टिमल होगी, दैट इज स्टोर्ड, दैट के वैल्यू इज स्टोर्ड हियर. So this means here we make a 2 matrices, each of size. First we make first matrix that is M. M is a M matrix that is of size 1, 2, 3, 4, because there are 4 number of matrices here. So this is a 4 cross 4 matrix, 1, 2, 3, 4. Then we make another matrix that is इसको हम थोड़ा साइज इसका लार्ज कर देते हैं जस्ट. Here we make a matrix M. M is of this is 1, 2, 3, 4. 4 number of columns and 4 number of rows. 1, 2, 3,
and 4. Then another matrix S, that is of size n minus 1 cross n minus 1. यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज होंगे 1 to n minus 1, तो 1 2 3 नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स क्या होंगे 2 to n 2 3 4. वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4. Here, then we start the computation. According to this, when I is equal to j, then what will be the value of mij? Mij is equal to 0 if I is equal to j. Minimum of I is less or equal to k is less than j. mik plus mk plus 1 j plus pi minus 1 cross pk cross pj. Mean of this. So what happens here when we compute m11, because I is equal to j, that is equal to m22, that is equal to m33, that is equal to m44, all are 0. Here, what is the value of p0? So this is p0 is p0, p1, p2, p3, p4 and p5. p0 की वैल्यू क्या है 10, 20, 30, p3 is 15 and p4 is 25. Okay, p5 नहीं है इसमें, p4 is 25. This means the total length of p क्या है, length of p 5 है, तो n is equal to length of p minus 1, that is equal to 5 minus 1, that is equal to 4 हो गया. This means the value of n is equal to 4. So we make two matrices. One is of n cross n, that is named as m, which store the cost of mij, and s is another matrices which store the optimal indices k, which for which value that is that gives the optimal cost. So here what happens, then we make a two matrices, and we know from the above formula mij is equal to 0 when I is equal to j, and this is equal to mean of I is less or equal to j, I is less or equal to k, that is less than j. Mean of ik, mean of k plus m of ik, m of k plus 1j plus pi minus 1 cross pk cross pj. So here what happens when we multiply, then after that we see here that m11, m22, m33 and m44 are equal to 0. Then we multiply m12. m12 is what? m12 is equal to, we take a value of starting from k is equal to I and then, तो यहाँ पे देखिए इनिशियली आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे इनिशियली m में क्या कर लीजिए, इसकी वैल्यू 1 1 की 0 है, 2 2 की 0 हो गई, 3 3 की 0 है, 4 4 की 0 है. ये आ गया इसमें मैट्रिक्स में. अभी k की वैल्यू कुछ नहीं है, k स्टार्टिंग फ्रॉम 2 है, देखिए 1 2 फर्स्ट और 2. तो देन वी कंप्यूट m12. m12 इज व्हाट, we take a value of k is equal to starting from I and up to j minus 1. तो j minus 1 करेंगे तो 1 ही आएगा. तो this means this is equal to mean of what, m of 1 comma 1, k की वैल्यू m of ik प्लस m of kj, k की वैल्यू k प्लस 1j, m of 2 2 2 comma 2 प्लस व्हाट, यहाँ पे देखिए क्या है, p0 p I minus 1 होगा, तो दिस इज प्लस p0 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, p1 मल्टीप्लाइड बाई p2. ये हो जाएगा p0, ये क्या है I minus 1, I की वैल्यू क्या है 1, तो I minus 1 क्या हो जाएगा 0, pk k की वैल्यू 1 है एंड pj j की वैल्यू क्या है 2 है, तो एक ही है, तो इसलिए यही मिनिमम होगा. क्योंकि फॉर k की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, k की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम I एंड अप टू j minus 1, तो j minus 1 की वैल्यू क्या है, that is also same as I, so this is equal to this. So here we know from the previous stored value of a table,
So we already solved these sub problems. Means M11, M22, M33, M44 are 0 that are stored in a table. So we pick the values from a table. Because here we use a dynamic approach. So we save the solution in the form of in a table, and when the same sub problem is encountered later on, we pick it from a table. Solution from a table. So this is equal to क्या हो जाएगा? Mean of, the mean of M11 is already 0. This is 0. P0, P1 और P2. P0, P1, P2 की वैल्यू देख लीजिए क्या है. P0, P1, P2 that is 10 cross 20 cross 30. So this is equal to 0 plus 0 plus 10 cross 20 cross 30. तो this is equal to, इस जो वैल्यू आएगी, this is equal to 600. ओके, तो अब आपको M12 मिल गया. तो M12 की कास्ट जो आई वो यहाँ पे रख दीजिए. आपकी 600 कास्ट आ रही है. ठीक है. देन we find what, अब k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 2. when we find what will be the value of k, k is equal to 1 के लिए मिनिमम है, क्योंकि k की वैल्यू 1 से ज्यादा कुछ है ही नहीं, 2 ले नहीं सकते हैं. तो दिस इज 1. देन we find the M23 अब फाइंड करेंगे. M23 इज व्हाट, देखिए यहाँ पे फिर k की वैल्यू i से स्टार्ट होगी. तो दिस इज इक्वल टू मीन ऑफ क्या होगा, M22, k की वैल्यू 2 हो गई, फिर प्लस k प्लस 1 M33 प्लस क्या हो जाएगा, 2 से स्टार्ट है. तो दिस इज P1 मल्टीप्लाइड बाई k की वैल्यू क्या है, P2 मल्टीप्लाइड बाई P3. तो दिस इज 0, दिस इज 0. तो व्हाट, दिस इज P1. तो सिंपली हियर वी राइट P1 मल्टीप्लाइड, तो P1 P2 P3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, P1 20 क्रॉस 30 क्रॉस 15 20. तो दिस इज इक्वल टू, मीन है तो एक ही है तो वही मीन होगा, 20 क्रॉस 30 क्रॉस 15. तो दिस इज इक्वल टू 900. तो इसकी कास्ट क्या आई, इसकी कास्ट आ गई आपकी 23 की कास्ट निकालेंगे हम, 900 आ गई. और यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, 23 में देखिए k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 2 ले लिया हमने. 23 सर, यस सर 6000 होनी चाहिए, 6000 और 9000 सर ये कैलकुलेशन में 10 into 20. सॉरी हाँ, 6000 एंड 9000. ये 6000 आएगी, इसमें क्या आएगी, इसमें तो 900 ही आएगी ना. 9000 सर, सॉरी 9000. ओके 9000. ओके, थैंक यू. तो नेक्स्ट क्या होगा, इसका क्या आ गया, ये 6000 यहाँ कर लीजिए, 6000 और यहाँ 9000 आ गया. ओके, नेक्स्ट अब यहाँ देखिए k की वैल्यू भी हमने स्टोर कर लिया, इसी वैल्यू के लिए ऑप्टिमल है. देन वी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ M23 के बाद हम M34 कंप्यूट करेंगे, M34. ठीक है, 2 आप कंप्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ कम्यूटेटिव. तो आप 3 4 आगे ही चेन में सीरीज में करेंगे, बैक आपको नहीं जाना है. तो M34 करेंगे तो अगेन भी टेक द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3. तो हियर दिस इज इक्वल टू मीन ऑफ क्या हो जाएगा, मीन ऑफ M33 प्लस k प्लस 1 M4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 मल्टीप्लाइड बाई P3 मल्टीप्लाइड बाई P4, P2 मल्टीप्लाइड बाई P3 मल्टीप्लाइड बाई P4. तो अब इसका क्या आ जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, तो क्या हो जाएगा, P2 मल्टीप्लाइड बाई P3 मल्टीप्लाइड बाई P4. अब इसकी देख लीजिए, P2 और P3 की वैल्यू आपको पता है, 30 क्रॉस 15 क्रॉस P4 की वैल्यू क्या है, लास्ट में देख लीजिए, P4 की वैल्यू आपका है 25, P4 दैट इज 25. तो अब इसको आप कर लीजिए 25, जो भी आएगा रिजल्ट क्या आएगा, 11250. 11250. ओके, यही आ रहा है ना, 11250. तो आप इसको आप रख लीजिए, k की वैल्यू यहाँ पे वो कर लीजिए, ये क्या आ रहा है इसका, 11250. 3 4 का आ गया, देखिए 4 4 का आप 0 है, और यहाँ पे 3 4 की वैल्यू रख दीजिए, k की क्या आई है वैल्यू, 3 रख दीजिए. ओके, अब आपको देखिए क्या कंप्यूट करना है, देन बी कंप्यूट, ये वैल्यू आपको कंप्यूट करना है 1 3. फिर 1 3 के बाद 3 2 4 आप कंप्यूट करेंगे,
क्योंकि ऑलरेडी 3 4 आपके पास है। तो अब देन वी स्टार्ट द कंप्यूटेशन ऑफ यम 13, यम 44 का आप ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज 0। तो यम 13 इज व्हाट, यम 13 दैट इज, अब देखिए यहाँ के की वैल्यू आई से स्टार्ट होगी एंड अप टू j-1, जे की वैल्यू क्या है 3, तो j-1 2 तक चलेगी। तो दिस इज इक्वल टू मीन ऑफ व्हाट, मीन ऑफ यम when we take the value of k is equal to 1, तो this is 1 1 प्लस, अब k प्लस 1 क्या हो जाएगा, या k प्लस 1 j, तो यम 2 3, ओके, प्लस अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस एंड दिस, तो क्या हो जाएगा इसका p0 मल्टीप्लाइड बाई pk, तो क्या हो जाएगा p1 मल्टीप्लाइड बाई pj p3, ओके, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होगा, एक तो ये हो गया कामा मीन ऑफ दिस व्हेन वी टेक अ वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2, तो यम ऑफ 1 2 i k प्लस k प्लस 1 क्या हो जाएगा यम ऑफ 3 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा p0 मल्टीप्लाइड बाई pk क्या है 2 है, p2 मल्टीप्लाइड बाई pj p3। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, तो व्हेन बी, तो दिस इज इक्वल टू मीन ऑफ, दिस इज इक्वल टू मीन ऑफ 1 1 की वैल्यू आपको पता है क्या हो जाएगी, दिस इज 0 प्लस 2 3 ऑलरेडी स्टोर्ड इन अ टेबल, 2 3 की वैल्यू क्या है, 2 3 की वैल्यू 9000 है, तो आप यहां से ले लीजिए प्लस 9000, और ये आपको करना पड़ेगा। p0 की वैल्यू क्या है p1 और p3, तो p0 की वैल्यू जनरली क्या है, p0 इज व्हाट 10 p0 10 30 एंड 15, 10 30 एंड 15, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 15, ओके, तो दिस इज द वैल्यू। तो आप इसको कंप्यूट कर लीजिए, 10 मल्टीप्लाइड बाई 30 तो क्या हो गया 300 हो गया, और ये 4500 तो ये 9000। तो सेकंड क्या होगी, सेकंड वैल्यू कंप्यूट करिए, यम 12 इज ऑलरेडी टेकन फ्रॉम ऑलरेडी स्टोर्ड इन अ टेबल, 12 की वैल्यू क्या आई है 6000 आई है, ठीक है, यम 12 इज 6000, तो दिस इज 6000 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 0 आई है, 0 है, m33 0 0 प्लस नेक्स्ट p0 10 है मल्टीप्लाइड बाई p2 की वैल्यू देख लीजिए क्या है यहाँ से, व्हाट इज p2 इज 30, p2 इज 30, तो दिस इज इक्वल टू p2 इज 30, तो पहले में हमने क्या किया था p0 p1 हो जाएगा, p1 में 20 है ना यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट बोलिए, वैल्यू क्या है p0 p1 p2 p3 p4, इसकी वैल्यू बोलिए p0 में क्या था 10 p0 10 10 20 20 30 30 15 25 25। ओके, हाँ, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है p0 में क्या है 10 है, p1 में क्या है 20 है, ओके, और p3 में क्या है 15 है, ओके, ठीक है, 6000 प्लस 0 प्लस क्या है p0 10 है, p2 30 है, ओके, प्लस p3 है मल्टीप्लाइड बाई p3 दैट इज 15। अब इसको आप कंप्यूट कर लीजिए क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 9000 क्या आएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 20 300 प्लस, तो 3000 आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 9000 प्लस 3000 12000 आ जाएगा, ये क्या आएगा, कंप्यूट करिए इसको 6000, ये क्या है 10,500 10,500, ओके। तो अब देखिए इसमें से आपको मिनिमम लेना है, दिस मींस दिस वैल्यू इज m13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन इज दिस, तो ये क्या हो जाएगा 10,500 आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी आई। तो दिस इज स्टोर्ड इन m13 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k व्हेन k इज इक्वल टू 2। देखिए k इज इक्वल टू 1 के लिए मिनिमम नहीं है, k इज इक्वल टू 2 के लिए मिनिमम है, तो इसको आप k की वैल्यू स्टोर कर लीजिए। तो यहाँ पे 13, तो 13 में देखिए यहाँ पे सिंपली स्टोर कर लीजिए, ये क्या आया है 10,500 आ गया, और यहाँ पे आप 13 पे स्टोर कर लिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k,
k की वैल्यू क्या आई है, दैट इज 2 के लिए ऑप्टिमल आया है आपका। नेक्स्ट आप क्या कंप्यूट करेंगे, 2 4 कंप्यूट करेंगे, देन भी कंप्यूटर 2 4 m 2 4 दिस इज इक्वल टू व्हाट, मीन ऑफ। अब यहाँ पे देखिए अगेन की वैल्यू लेंगे, k की 2 होगी और k की वैल्यू 3 ले सकते हैं, लेंगे तो दिस इज मीन ऑफ m 2 2 प्लस m k प्लस 1 3 4 प्लस व्हाट p1 multiplied by pk p2 multiplied by pj p4. Okay, then next is comma m when we take value of k is equal to 3 2 comma 3 plus m 4 comma 4 प्लस, अब यहाँ पे देखिए p m 2 3 है, i की वैल्यू यहाँ पे क्या लिए हैं 2, तो when this is equal to p1 multiplied by k is p3 multiplied by pj p4. अब इसको अगेन भी कंप्यूट हियर, दिस इज मीन ऑफ m22 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ m44 की वैल्यू 0 हो जाएगी, m34 इज टेकन फ्रॉम अ टेबल, तो m3 की वैल्यू क्या है m34 आप यहाँ से ले सकते हैं, m34 में क्या है 11,250, m34 में 11,250, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11,250 प्लस ये तो 0 हो गया, 0 प्लस दिस प्लस p1 की वैल्यू p1 p2 p4, तो p1 20 p2 30 p4, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 25, 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 25, सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज m23 is what, m23 is 9,000, so this is 9,000 plus 0 plus p1 is what 20 plus p3 that is 15 plus p4 that is 25। अब इसको आप कंप्यूट कर लीजिए, क्या आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 600 आ गया, और दिस इज 25 मल्टीप्लाइड बाई 600 15,000 आएगा ना, 15,000 प्लस दिस 11,250 कंप्यूट करके बताइए कितना आएगा 26,250 26,250। इसका क्या आएगा, कैलकुलेटिंग, ओके कैलकुलेट कर लीजिए 2050 दैट इज 16,500 16,500। एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है, दिस मीन्स इसमें मिनिमम आया तो हम इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे 16,500 ये ले लेंगे, आपकी वैल्यू हो जाएगी। दिस मीन्स m24 में हम क्या स्टोर कर देंगे 16,500, यहाँ स्टोर कर दीजिए 16,500 and here for what value of k, when k is equal to, here we see that when k is equal to 3 this is equal to 16,500, तो ये k की वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर कर लीजिए 2 4 में k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू फॉर k is equal to 3। अब नेक्स्ट देखिए आपको सिंपली कंप्यूट, अब लास्ट बचा हुआ है 1 4 या 1 4 कंप्यूट करना है, देन वी कंप्यूट 1 4 m 1 4 दिस इज इक्वल टू मीन ऑफ। अब देखिए यहाँ पे k की वैल्यू i से स्टार्ट होगी j-1, तो दिस इज मीन ऑफ क्या होगा when k is equal to 1, तो m 1 1 प्लस m k प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी 2 4 प्लस व्हाट, अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी p0 मल्टीप्लाइड बाई k p1 मल्टीप्लाइड बाई pj p4 कामा, दूसरा क्या होगा व्हेन वी टेक अ वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2, तो m 1 2 प्लस m k प्लस 1 j 3 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा p0 मल्टीप्लाइड बाई pk मीन्स p2 मल्टीप्लाइड बाई p4 कामा, देन व्हेन फॉर k इज इक्वल टू 3 दिस इज इक्वल टू m 1 3 प्लस m 4 4 प्लस p0 मल्टीप्लाइड बाई p3 मल्टीप्लाइड बाई
P4 पीजे। तो अब देखिए यहाँ से M11 की वैल्यू पता है, M24 दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन अ टेबल, M12 इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन टेबल, M34 ऑलरेडी स्टोर्ड इन टेबल, 13 is already stored in table, and M44 which is 0 that is already stored in a table. We also know the dimension of matrices means values P0, P1, P3, P2, P4 and so on. So this we put all those values from the table. Mean of this M1 is equal to 0 plus M24 आप टेबल से लिख लीजिए क्या है M24 पे, M224 पे आया है 16,500, यहाँ पुट कर दीजिए 16,500, देन प्लस P0 क्या है, P0 10 है, P1 क्या है 20 है, P4 क्या है 25 है। ओके, तो आप इसको कंप्यूट करिए तब तक। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉमा, फिर ये M12 we see the value of M12 from table. M12 is what, M12 6,000, so that is 6,000 plus M34, this is already stored in table. M34 is what, M34 11,250, 11,250 प्लस, अब इसकी वैल्यू आप रख लीजिए P0 मल्टीप्लाइड बाई P2, P0 क्या है 10 है, मल्टीप्लाइड बाई P2 क्या है 30 है, मल्टीप्लाइड बाई P4 दैट इज 25। नेक्स्ट, अब आप M13 विच इज ऑलरेडी स्टोर इन अ टेबल, M13 की वैल्यू क्या है 10,500, तो दिस इज 10,500 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या आई आपकी, नेक्स्ट वैल्यू आ रही है दिस इज M44 विच इज 0 प्लस P0 दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई P3 दैट इज 15 मल्टीप्लाइड बाई P4 दैट इज 25। इसको कंप्यूट करिए, दैट इज इक्वल टू मीन ऑफ 16,500 plus this 10 multiplied by 20 that is 200 plus multiplied by 25, so this is 25 multiplied by 200 that is 5,000, तो 16,500 21,500 आ जाएगा यहाँ पे 21,500। एक बार रीचेक कर लीजिएगा, कामा, फिर 6,000 प्लस 11 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये आ जाएगा 30, 300, 7,500 ये आ जाएगा प्लस 6,000, तो ये आ जाएगा 11 प्लस 6 दैट इज 17, 11 प्लस 6 दैट इज 17। सर 24,750, 24,750। थर्ड क्या आ रहा है 10, 14,250, 14,250। ठीक है, तो दिस मीन्स दिस वन इज द मिनिमम, तो इसकी वैल्यू क्या हम ले लेंगे, मिनिमम लेना है तो 14,250 आ गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या है इसके लिए, देखिए के की वैल्यू 3 है, के की वैल्यू फॉर के इज इक्वल टू 3 दिस गिव्स अ मिनिमम, तो यहाँ पे आप स्टोर कर लीजिए 14,000 क्या है लास्ट 14,250, तो दिस इज आप इसमें यहाँ रख लीजिए 14,250 और इसमें के की वैल्यू आप स्टोर कर लीजिए, के की वैल्यू 3 है। तो देखिए when we multiply A1 to A4 तो total number of computations required, तो when this means we can say that A1 dot A2 dot A3 dot A4 which is equal to means total number of computation 14,250। अब इसमें कैसे पैरेंथेसाइज किए हैं, तो यहाँ पे देखिए just see in the matrix yes, तो when 1 4 के लिए k की वैल्यू क्या है 3 है, तो दिस मीन्स we partition this in 2 मैट्रिक्स, ठीक है, k is equal to 3, तो दिस मीन्स अब इसको किस में पार्टीशन किया गया है, एक पोर्शन में A1 A2 अप टू k हो जाएगा और दूसरे में k+1 से j, तो k+1 और j की वैल्यू सेम होगी, तो दूसरे में आपका A4 हो गया। ओके, एक देखिए ये आया पार्टीशन, एक आपका ये आया, तो अगेन दिस कंसिस्टिंग ए सिंगल मैट्रिक्स, ओके, दिस कंसिस्टिंग ऑफ 3 मैट्रिक्स। तो अब इन दो को कैसे करना है, तो अब इसके लिए क्या जाएंगे, अब देखिए दिस मींस A13, तो M13 की वैल्यू देख लीजिए क्या है, M1, अब यहां से भी आप यही सेम चीज आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या आया है,
दिस m13 प्लस m44, ओके। तो अब m13 में जाके देख लीजिए, m13 यहाँ कहीं होगा, ये दिस इज m13। तो m13 में क्या आया है 10,000, तो इसके लिए k की वैल्यू क्या आई है, k की वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2 आया है। तो दिस मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको, अब देखिए k इज इक्वल टू 2, तो अगेन दिस इज पार्टीशन इनटू 2, तो a1 a2 एक पेरेंथेसिस में हो जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आ गया a3, तो अब पहले आपकी ये पेरेंथेसिस सॉल्व होगी, देन आप इसको a4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज द पेरेंथेसाइजेशन। a1 डॉट a2 पहले कंप्यूट करेंगे, देन फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको a3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो इसका होल रिजल्टेंट आएगा उसको हम a4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट वी सी a1 a2, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, a1 इज ऑफ डायमेंशन 10 क्रॉस 20, a2 क्या है, a2 इज ऑफ डायमेंशन 20 क्रॉस 30, a3 इज ऑफ डायमेंशन 30 क्रॉस 15, a4 इज ऑफ डायमेंशन 15 क्रॉस 25। अब यहाँ पे देखिए this means a1 a2 is multiplied, first a1 a total number of computations is required 10 cross 20 cross, total number of computation for multiplying this a1 into a2 to 10 cross 20 cross 30 plus, अब देखिए when we multiply this, तो 10 क्रॉस ये क्या हो गया 6000 आपका आ जाएगा, प्लस अब इसको आपको a3 के साथ, अब ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बचा, इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा दैट इज ऑफ a1 डॉट a2, ये कितने क्रॉस कितने का आएगा, a1 डॉट a2 दिस इज 10 क्रॉस 30 का आएगा, 10 क्रॉस 30 का। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, a3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a3 का साइज क्या है 30 क्रॉस 15 है, तो दिस मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। तो जो नंबर ऑफ कंप्यूटेशन होंगे इसमें क्या होंगे 10 क्रॉस 30 क्रॉस 15, 10 क्रॉस 30 क्रॉस 15, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस एंड दिस मैट्रिक्स, तो अब आपका आ जाएगा a1 डॉट a2, फिर इसको आपने मल्टीप्लाई किया a3, इसका टोटल रिजल्ट आएगा कितने, एक कितने क्रॉस कितने का आएगा आपको मैट्रिक्स 10 क्रॉस 30, 30 क्रॉस 15, 10 क्रॉस 15 का आ जाएगा। अब 10 क्रॉस 15 का मैट्रिक्स है, उसको 15 क्रॉस 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वी मल्टीप्लाई, इसका कंप्यूटेशन कॉस्ट क्या आएगा 10 क्रॉस 15 क्रॉस 10 क्रॉस 15 क्रॉस 25, इसको कंप्यूट करिए कितना आएगा, तो दिस इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 6000 प्लस 300, ये क्या हो जाएगा 4500 प्लस ये कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो दिस इज इक्वल टू 25 250 हो गया, 15 से 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो दिस इज 100, तो 375 3000, ये टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर 6 4 10 और 10, दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू 14,250। तो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस कितने रिक्वायर्ड हुए हैं 14,250 एंड दिस इज द वे ऑफ पैरेंथेसाइजिंग। आपकी टोटल कई सारे इसमें पॉसिबल पैरेंथेसाइजिंग होंगी, पैरेंथेसिस बनेगी, बट व्हिच वन इज बेटर पैरेंथेसाइजिंग ऑफ द चेन ऑफ मैट्रिसेस, दिस वन इज बेटर। इससे ऑप्टिमल रिजल्ट कोई भी नहीं हो सकता। तो दिस इज द way in which we use a matrix multiplication, chain of matrix multiplication by using a dynamic approach to find a optimal solution which minimize the total number of computations. So this one is clear? Yes, sir. ठीक है, तो this is here we discuss another example in this notes. So this is the means matrix we already discussed about this. This is the solution, means Mij is equal to 0. If I is equal to j, then this is of this. If I is less than j, and here there are two matrices, Mij for storing Mij cost and yes for recording indices for optimal cost. This is algorithm, we already discussed the algorithm. Means first क्या है देखिए यहाँ पे simply n is equal to length of p minus 1, for I is equal to 1 to mii हमने 0 कर लिया इनिशियली,
देन यल इज इक्वल टू 2 से हम n तक एक लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 1 टू n माइनस यल प्लस 1 डू j इज इक्वल टू j की वैल्यू क्या करेंगे i प्लस यल माइनस 1। तो देखिए j की वैल्यू क्या है, इनिशियली i की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1 प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, दैट इज 2। तो j की वैल्यू 2 होगी और m 1 2 में क्या रख देंगे इनिशियली इनफाइनाइट, मींस m i j में इनफाइनाइट होगा। देन चेक करेंगे फॉर k इज इक्वल टू i टू j माइनस 1, एक लूप चलाएंगे i टू j माइनस 1। देन q इज इक्वल टू m i k प्लस m ऑफ k प्लस 1 j प्लस पी आई माइनस 1 क्रॉस पी के क्रॉस पी जे। तो इफ q इज लेस देन m i j, अब यहाँ पे देखिए अगेन इनिशियली तो हमने यहाँ पे m i j की वैल्यू इनफाइनाइट सब में कर रखा है, लाइक हियर यदि आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियली इन दिस केस, इनिशियल स्टेज पे आप ये सारी वैल्यू इनफाइनाइट कर सकते हैं जो हमने लिखा है। ये आपने 1 1 2 2 3 3 4 4 0 कर लिया, ये सारा इनफाइनाइट कर लीजिए, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो अब 6000 जैसे ही वैल्यू इसकी आएगी यू कंपेयर 6000 फ्रॉम इनफाइनाइट, तो दिस इज लेस, तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज पुट हियर। देन यहाँ 9000 आएगी, दिस अगेन जो है दिस इज लेस देन इनफाइनाइट, यहाँ पे 9000 हम रख देंगे। फिर दिस इज 11250, दिस इज लेस देन इनफाइनाइट। फिर हम इसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी इनफाइनाइट असाइन किया हुआ है, तो जो भी वैल्यू आएगी मिनिमम उसको हम रखेंगे। तो इन दिस वे वी फाइंड अ सॉल्यूशन। तो दिस वन इज मींस mi में क्या कर लेंगे, इफ q इज लेस देन mi है तो mi इज इक्वल टू q कर लेंगे, और यस ij में हम क्या स्टोर कर लेंगे, k स्टोर कर लेंगे, एंड फाइनली रिटर्न द वैल्यू ऑफ ems। दिस इज द एग्जांपल्स। You take examples here that consisting of 6 means we multiplying the 6 matrices A1, A2, A3, A4, A5, A6 in a chain system. Means अब ऐसा नहीं है कि आप A2 A1 कॉम्बिनेशन रख लीजिए, आपको A1 से A2 ही मल्टीप्लाई करना है, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है, नॉट अ बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको पैरेंथेसाइजिंग नहीं करना है, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज दिस इज द चेन एंड वी नो दैट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ कम्यूटेटिव, hence we cannot multiply it in backward directions। तो ये सिंपली आपने एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, देन आपने साइन कर लिया, देन कंप्यूट। यहाँ पे भी सपोज करिए इसमें क्या आया है, देखिए अब यहाँ पे लास्ट में डिस्कस कर देता हूँ। टोटल M16 पे आपका जो ऑप्टिमल कास्ट आया, तो यहाँ पे M16 में ऑप्टिमल कास्ट क्या आया, M16 में ऑप्टिमल कास्ट इसका आ रहा है 15,125, 15,125। अभी देखिए फॉर आपके ऑब्टेन दिस ऑप्टिमल कास्ट, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आया है 15,125। यहाँ पे k की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, k इज इक्वल टू 3 है, तो m ऑफ 13। अब आप यहाँ पे जाइए तो इसको आपको पैरेंथेसाइजिंग देखना है कैसे करेंगे, तो आप तुरंत यहाँ से देख लेंगे कि k इज इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे जैसे हमें इसको करना है, तो सिंपली हमने देखिए ये आपका जो मैट्रिसेज है, सपोज A1, A2, A3, A4, A5, A6 है। साइज आपका आप ले लीजिएगा प्रीवियस एग्जांपल से, साइज आपका जब ये होगा तभी ये तो आपका एक देखिए ये हो गया A1 से A3 और दूसरा A4 से A6। ओके, यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं ये चीज, A1 से A3 और दूसरा 4 से 6, ठीक है, 4 से 6 प्लस कॉस्ट ऑफ दिस। अब इसके बाद आप क्या पैरेंथेसाइज करेंगे, तो 13 पे चले जाइए और 46 में चले जाइए। तो 13 आपने कैसे कंप्यूट किया है, या टेबल से भी देख सकते हैं। 13 ये है 13 में देखिए क्या आया है, मिनिमम इज 7,875। इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, व्हेन k इज इक्वल टू 1, व्हेन k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1, तो एक ये 1 और 2 3, तो यहाँ पे सिंपली देखिए इस पैरेंथेसाइजेशन को आप क्या कर देंगे, एक तो 1 तो और 2 3, तो 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 को इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपका क्लियर हो गया कि A2 A3 फर्स्ट मल्टीप्लाई किया, देन A1, दिस वन इज क्लियर। अब आप इधर चले जाइए A4 A5 6, तो A4 से 6 देख लीजिए क्या है, तो दिस वन इज A4 to 6,
ये है m4 से 6, m4 6 में मिनिमम क्या आया है 3500 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 5, फॉर वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 5, तो एक 4 5 हो जाएगा, दूसरा 6 हो जाएगा, तो इसका पैरेंथेसाइजेशन क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 4, तो एक 4 5 हो जाएगा ये, और दूसरा 6 हो जाएगा। तो इन दिस वे we multiply the matrix। तो ये जो चेन ऑफ पैरेंथेसाइजिंग हुआ, ये क्या हुआ, फर्स्ट we multiply a2 a3, then it is multiplied from a1 means a1 dot result of this, then हम क्या करेंगे a4 a5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको a6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन एक रिजल्ट आपको यहां से मिलेगा, एक रिजल्ट यहां से मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस वन इज द टोटल कास्ट एंड दिस गिव्स द ऑप्टिमल कास्ट। ठीक है, ओनली 5 minutes आर लेफ्ट। If there is any query, then please ask. And in the next class, because the next problem is all pair shortest path problem, which is a long problem, so we will discuss this in next class because at least 30 minutes is required. So if there is any confusion in today class, then please ask. जो मैंने पीडीएफ भेजा था वो सारे लोगों को मिल गई है? सर नहीं हो रहा। नो सर। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं हुआ होगा, तो आप लोगों का कोई एक ग्रुप मेल बना हुआ है ना? यस सर, मंजरी मैम ग्रुप में बना हुआ है। मंजरी में ग्रुप मेल आईडी किसी ने मुझे शायद सेंड किया था, तो वो दोनों का कॉमन है, एक तो एमएससी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग वालों का अलग होगा और एमएससी कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन वालों का अलग होगा। तो आप लोग यदि ग्रुप आईडी है कोई ऐसी, तो ग्रुप आईडी भेज दीजिए, तो मैं उस ग्रुप आईडी में सेंड कर दूंगा पीडीएफ, तो शेयर करने का वही नहीं रहेगा। आप दोनों सर एमएससी, यस एमएससी वाले ग्रुप, बोलिए बोलिए। एमएससी सीएसए वाले में भेज दीजिए, तो उसमें हम लोग को मिल जाएगा। एमएससी सीएसए का है ग्रुप आईडी? सर व्हाट्सएप पे है। व्हाट्सएप नहीं, कोई ग्रुप आईडी मेल, ग्रुप मेल नहीं बना है आप लोगों का? आइडिया नहीं है। एमएससी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग वालों का तो है ना ग्रुप आईडी, मेल ग्रुप आईडी? ओके, मैं व्हाट्सएप में ही शेयर कर दूंगा, सारे लोगों को मिल जाएगा। ठीक है जी सर। ओके, तो नाउ यू स्विच ऑन योर वीडियो फॉर अटेंडेंस। Okay, thank you. Now you can leave now.